Everyone, welcome to economics class. Today we will discuss about the monetary policy of central bank. In this topic, we will discuss about how the central bank control over the money supply, that is how the central bank regulates the money supply in the economy, as RBI regulates money supply in the economy. Now, what is monetary policy? Monetary policy refers to the policy of the central bank, which is related with the regulation of money supply, that is, regulation of credit control in the economy. Let's start the topic. There are two types of instruments. One is the quantitative, that is the traditional instruments. Second is the qualitative or selective measures. Quantitative measures are those measures which are non discriminatory for all sectors or products to control the total quantum of credit. In fact, these are the instruments of credit control which focus on the overall supply of money in the economy. Supply of money can be used to lower down the inflation or to bring the stability in the economy. Quantitative credit control. Dear students, keep in your mind, this is related with the overall quantum of the credit. कोई इस पॉलिसी को कोई यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, ओवरऑल इकोनॉमी में मनी सप्लाई का कम हो जाना या कंट्रोल होना, रेगुलेट होना, इट कैन बी इंक्रीज्ड ऑल्सो if there is deflation in the economy. So let's start discussing about all these concepts. There are 6 components. One is the bank rate, second is the SLR, third is the open market operations, fourth is cash reserve ratio, fifth is repo rate, and sixth is reverse repo rate. Let's start discussing about the topic. First is the bank rate. What is bank rate? The bank rate or the rate at which central bank provides loans to commercial banks is called bank rate. This instrument is a key at the hands of RBI to control the money supply. Dear students, you are expected to learn the definitions of all these quantitative instruments because sometimes MCQ may be asked related with the definition of these instruments. So keep in your mind what is bank rate. Bank rate refers to the rate at which central bank provides loans to the commercial bank. Clear? Now, what type of changes can be brought in order to bring the economic stability in the economy? As I have already told you that there may exist a situation of inflation or deflation in the economy. Inflation refers to hike in general price level and deflation refers to decrease in general price level. In the next chapter, that is the concept of aggregate demand, we will discuss about the inflationary and deflationary pressure in the economy. The main cause of inflationary pressure in the economy is increase in aggregate demand, that is increase in flow of money supply or flow of credit in the economy. Similarly, the main cause of deflation is fall in credit or fall in money supply in the economy. So, in order to handle these deflationary or inflationary pressures, how central bank uses its monetary policy, how the central bank uses its instruments, quantitative as well as qualitative. This is the main focus of this very video. Now we are going to discuss about the bank rate. In case there is inflation in the economy, it means flow of credit is quite high. So in this situation, it is very important to adopt such a measure so that the flow of credit or supply of money can be reduced. Clear? Have you got the concept? During inflation, क्या किया जाएगा? क्रेडिट कंट्रोल करना पड़ेगा, फ्लो ऑफ क्रेडिट कम करना पड़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी को कम करना पड़ेगा. इन दिस सिचुएशन, central bank will increase the bank rate because when bank rate will be increased, there will
there will increase in the rate of interest. That is, the commercial banks will be able to get the loans at expensive rate from the central bank. The result will be the commercial banks will be able to lend the money at higher rate of interest. It means there will reduction in flow of credit. The opposite will happen when there is deflation in the economy. During deflation, bank rate will be reduced because it will increase the क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक. ध्यान से समझो, बैंक रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक्स को लोन महंगा मिलेगा. अगर उनको लोन महंगा मिलेगा तो वो आगे जनरल पब्लिक को भी महंगा ही प्रोवाइड करेंगे. इससे क्या होगा, फ्लो ऑफ क्रेडिट, मतलब लोग उसको कम लेंगे और फ्लो ऑफ क्रेडिट कम हो जाएगा. सो कैसे करना है आपने इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आप बैंक रेट को डिफाइन करोगे, फिर आप बताओगे कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन कैसे होगा और ड्यूरिंग डिफ्लेशन क्या करेंगे. क्लियर बेटा? देन मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट. दिस इज द कैश रिजर्व रेशियो, CRR. It refers to the minimum amount of funds that a commercial bank has to maintain with the Reserve Bank of India in the form of deposits. अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक फिक्स प्रोपोर्शन हर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज द टोटल एसेट्स ऑफ अ बैंक आर वर्थ ₹200 crores and the minimum cash reserve ratio is 10%, then the amount that the commercial bank has to maintain with RBI is ₹20 crores. If this ratio rises to 20%, then the reserve with RBI increases to ₹40 crores. अगर डिपॉजिट बढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा वहाँ रखना पड़ेगा और डिपॉजिट अगर कम हो गए हैं तो रिजर्व भी कम हो जाएंगे. लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर कैश रिजर्व बढ़ रहा है, जैसे 10% से CRR बढ़ रही है, thus less money will be left with the commercial bank for lending. This will eventually lead to considerable decrease in money supply. On the contrary, a fall in CRR will lead to an increase in the money supply. So अब हमें यहाँ से पता क्या लग रहा है कि अगर CRR increase होता है, if CRR increases, it will reduce the credit creation capacity of commercial bank. और ये हमें कब चाहिए? When there is inflation in the economy. So during inflation, CRR will be increased. अभी हमने डिस्कस किया था, during inflation bank rate will be increased. Similarly, during inflation CRR will be increased because it will reduce the money supply in the economy. और inflation में हमें money supply को ही कम करने की ज़रूरत है. Now move to the next topic. This is the statutory liquidity ratio, also known as SLR. What is SLR? SLR is concerned with maintaining the minimum reserve of assets with RBI, whereas the cash reserve ratio is concerned with maintaining cash balance with RBI. बच्चे यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. So SLR is defined as the minimum percentage of assets to be maintained in the form of either fixed or liquid assets with RBI. Statutory liquidity ratio. Yes, beta. Please make a correction here. SLR is concerned with maintaining the minimum reserve of assets with itself. Clear? With itself. Whereas the cash reserve ratio is concerned with maintaining cash balance with RBI. यहाँ पर with themselves करना पड़ेगा. अगर हम कमर्शियल बैंक्स लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर with themselves करेंगे, otherwise with itself. Now this is SLR is defined as the minimum percentage of assets to be maintained in the form of either fixed or liquid assets. ये with RBI को छोड़ दीजिए बच्चे, यहाँ पर हम भी with RBI को काट रहे हैं, यहाँ से भी और इस यहाँ से भी. Now the flow of credit is reduced by increasing this liquidity ratio and vice versa. In the previous example, this can be understood as rise in SLR will restrict the banks to pump money in the economy,
thereby contributing towards decrease in money supply. The reverse case happens if there is fall in SLR as it increases the money supply in the economy. बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस CRR में क्या है कि उसको कैश रिजर्व्स रखने होते हैं सेंट्रल बैंक के पास, और SLR में अपने पास रखने होते हैं फिक्स्ड एसेट्स की फॉर्म में, चाहे वो फिक्स एसेट की फॉर्म में रखे या मिनिमम परसेंटेज ऑफ फिक्स एसेट की फॉर्म में अपने पास रखे। दोनों ही सिचुएशन में उसके पास क्या क्या रहेगा कि उसकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है। द कमर्शियल बैंक्स विल बी एबल टू lend less money. The result will be reduction in flow of credit. और फ्लो ऑफ क्रेडिट को कम कब करना है हमें, जब इन्फ्लेशन होता है। तो हमने फिर तीसरा पॉइंट निकाला। फर्स्ट तीनों को रिकॉल करा रही हूँ। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन देयर विल बी रिडक्शन इन बैंक रेट, देयर विल बी रिडक्शन इन CRR, there will reduction in SLR because it will reduce the credit creation capacity of the commercial bank. The commercial banks will be able to lend less. The result will be reduction in flow of credit. And in case of deflation, opposite will happen. Opposite means bank rate will be reduced, CRR will be reduced, SLR will be reduced. Because of this, there will increase in credit creation capacity of commercial bank. The result will be increase in flow of credit. Got it, beta? Now move to the next. This is about the repo rate. Repo rate is the rate at which commercial banks can borrow money from RBI to overcome the shortage of money. By varying the repo rate, the RBI can increase or decrease the supply of money. This rate relates to the loan offered by RBI with securities and only short-term borrowings by the commercial banks. रेपो रेट कौन सी रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक्स जो है कमर्शियल बैंक्स बोरो करते हैं, कहाँ से? सेंट्रल बैंक से। यस बेटा, रेपो रेट इज़ द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम RBI टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ मनी. By varying the repo rate, the RBI can increase or decrease the supply of money. अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो अभी हमने बैंक रेट पढ़ा था, बैंक रेट में भी कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड कर रहे थे, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन वो लोन कैसा था? इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट्स थी, मतलब इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट्स थी। जबकि जो रेपो रेट है ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म लोन से ये शॉर्टेज ऑफ मनी है और अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो है ये भी वही, वहाँ पर क्या था? सेंट्रल बैंक ही लोन प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ भी सेंट्रल बैंक ही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो इमीडिएट लोन्स के लिए था, वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स के लिए था, और ये शॉर्ट टर्म लोन है, मतलब जो लोन विलिंगली लिया जा रहा है, अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़ लिया जा रहा है। ठीक है, जैसे हमने जो चेंजेस बैंक रेट में किए थे, बिल्कुल वही चेंजेस हमारे रेपो रेट में भी रहेंगे। जैसे बैंक रेट को हमें बढ़ाना पड़ा था इन्फ्लेशन के सिचुएशन में, ऐसे ही रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। दोनों ही केसेस में क्या होगा? जैसे बैंक रेट बढ़ा था, रेपो रेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, दोनों ही सिचुएशन में loans will become more expensive for the commercial banks. The result will be the commercial banks will lend money at high rate of interest, means it will become more expensive for the general public, that is for the people. The result will be reduction in demand for credit, that is flow of credit, that is there will be reduction in money supply, and in case of deflation repo rate will be decreased. Clear beta? Now move to the next topic. This is about the reverse repo rate. This is opposite to the repo rate we have discussed. Reverse repo rate is the rate at which the central bank of a country borrows money from commercial banks within the country, and it is monetary policy instrument which can be used to control the money supply in the country. फिर से देखो, this is the rate at which commercial banks can park their savings with
सेंट्रल बैंक, वो ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। कई बार सेंट्रल बैंक को भी इमीडिएट खर्चों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस फाइनेंशियल बर्डन को हैंडल करने के लिए या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए कई बार कमर्शियल बैंक से लोन लेना पड़ सकता है सेंट्रल बैंक को। या आप कह सकते हो कि कमर्शियल बैंक्स कैन पार्क देयर सेविंग्स विद सेंट्रल बैंक, दिस इज़ द रिवर्स रेपो रेट। अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन हो गई। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, मीन्स कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर रही हैं, तो सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देगा। जब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगी, कमर्शियल बैंक्स विल बी मोटिवेटेड टू पार्क मोर ऑफ देयर सेविंग्स विद सेंट्रल बैंक। उनको वहाँ रखना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि एक तो सिक्योर्ड है, बजाय कि वो जब उनको सेंट्रल बैंक से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो अपनी सेविंग को वही रखने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट क्या होगा? देयर विल रिडक्शन इन क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड द रिजल्ट विल बी reduction in flow of money or flow of credit, that is supply of money in the economy. Got it beta? Reverse repo rate will also be increased in order to reduce the inflationary pressure in the economy. अभी तक हमने 5 पॉइंट्स किए हैं, मैं 5 के 5 आपको रिकॉल करा देती हूँ। 1 is बैंक रेट, सेकेंड इज CRR, थर्ड इज SLR, फोर्थ इज रेपो रेट एंड फिफ्थ इज रिवर्स रेपो रेट। ये पांचों को ही बढ़ाना पड़ेगा इफ़ देर इज़ इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी, और इन पांचों को ही कम करना पड़ेगा इफ़ देर इज़ डिफ्लेशन इन द इकॉनमी। गॉट इट बेटा? नाउ दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस refers to the buying and selling of securities in an open market. In order to affect the money supply in the economy, the selling of securities, let's discuss once again about its definition. This is the selling of securities in an open market by the central bank. बच्चे, these are just the paper claims, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे KVPs आते हैं, किसान विकास पत्र आते हैं, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSCs आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक 25,000 का मैंने एक इंदिरा विकास पत्र खरीदा है, तो 25,000 रुपीज़ का मैं खरीद रही हूँ। अब ये क्या हुआ, ये जो 25,000 है ये मेरी पॉकेट में से निकल जाएंगे और मेरी पॉकेट में एक सिक्योरिटी आ जाएगी, मतलब एक पेपर क्लेम आ जाएगा। इससे क्या होगा, मेरी पॉकेट में 25,000 का वो पेपर क्लेम तो है, वो सर्टिफिकेट तो है, लेकिन मेरी परचेजिंग पावर नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो 25,000 रुपये नहीं है। अब अगर मेरी, अब ध्यान से समझना है इस बात को बच्चे, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, मतलब लोगों के पॉकेट में पैसे बहुत ज़्यादा है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सेंट्रल बैंक विल सेल द सिक्योरिटी, मतलब वो सिक्योरिटीज़ बेचेगा और हमसे पैसे ले लेगा। इससे क्या होगा, लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाएगी। द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी will soak the liquidity from the market. The result will be reduction in inflationary pressure. अब मेरी पॉकेट में सर्टिफिकेट है लेकिन पैसे नहीं है, तो मेरी परचेजिंग पावर अपने आप कम हो जाएगी। अगर दोबारा देखें, डिफ्लेशन की सिचुएशन है, मेरी पॉकेट में पैसे नहीं है, मैं सामान नहीं खरीद पा रही, अब डिफ्लेशन भी डिज़ायरेबल नहीं है, तो सेंट्रल बैंक विल परचेज द सिक्योरिटी। वो क्या करेगा, मेरे से वापस वो कागज़ दे लेगा, पेपर क्लेम मेरे से वापस ले लेगा और मुझे मनी प्रोवाइड करेगा। मीन्स सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय द सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी एज वेल एज डिफ्लेशनरी प्रेशर। ध्यान से समझो, ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to the buying and selling of securities in an open market in order to affect the money supply in the economy. The selling of securities by RBI will wipe out the extra cash balance from the economy. अभी मैंने आपको बताया मेरी पॉकेट में बहुत ज़्यादा पैसे हैं और इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको सोक करना पड़ेगा, लिक्विडिटी को
वाइप आउट करना पड़ेगा या सोकिंग करनी पड़ेगी उसकी। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द RBI. Now, whereas in the case of buying securities by RBI, additional money is pumped into the economy, stimulating the money supply. डिफ्लेशन की सिचुएशन है, लोगों के पास पैसे नहीं है, वो मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, तो क्या होगा, बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज. सो अब आपको यहाँ से ध्यान क्या रखना है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन देयर विल बी सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन देयर विल बी purchase of securities. And who will perform this function? This is the central bank. Who is the which is the Central Bank of India? This is Reserve Bank of India. Got it, beta? So we have discussed about 6 quantitative instruments of the monetary policy. Now move to the qualitative instruments or credit control or selective credit control by the central bank. Yes, beta. Qualitative instruments are those instruments of credit control which focus on few selective sectors of the economy. These instruments are used to increase or decrease the supply of money to selected sectors of the economy. These are the principal sources of instability in the economy. ये जो सिलेक्टिव सोर्सेज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इन्हीं की वजह से इंस्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आती है. अब भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. मींस ये कुछ सिलेक्टेड के बारे में है. क्वांटिटेटिव ओवरऑल मनी सप्लाई से रिलेटेड था, ये कुछ सिलेक्टिव कंट्रोल के बारे में है. चलिए इसको डिस्कस करना शुरू करें. फर्स्ट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट, द कमर्शियल बैंक्स फंक्शन टू ग्रांट लोन रेस्ट अपॉन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बीइंग मॉर्टगेज्ड. अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ. चलिए अभी एग्जांपल आएगा. सो द बैंक्स कीप अ मार्जिन विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द लोन वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, अ कमर्शियल बैंक ग्रांट्स लोन ऑफ ₹80,000 अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ₹1 lakh. इंडिया में जो बैंक्स होते हैं वो बैंकिंग सिस्टम बड़ा ज़्यादा सिक्योर्ड सिस्टम है, क्योंकि कमर्शियल बैंक हमेशा ही अगेंस्ट सिक्योरिटी लोन प्रोवाइड करते हैं, और जो सिक्योरिटी मॉर्टगेज रखी जाती है वो हमेशा लोन की वैल्यू से ज़्यादा होती है. जैसे इसको एग्जांपल में वो क्या दे रहा है कि अगर आपको 80,000 का लोन लेना है तो आपको 1 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी. एंड द डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटी मॉर्टगेज एंड लोन ग्रांटेड will be known as margin requirement. What is margin requirement? Margin requirement of loans refers to the difference between the value of security mortgage and the value of loan granted. So in this question, this is ₹20,000. Now, how this policy can be used in order to bring economic stability? If there is inflation in the economy, it is very very essential to reduce the flow of credit in the economy. लोग कम से कम बोरो करें. ये कब हो पाएगा? जब इस डिफरेंस को बढ़ा दिया जाए. अभी आपने देखा कि 80,000 के लोन के लिए 1 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी की ज़रूरत थी. सपोज करिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, सेंट्रल बैंक चाहता है कि लोन कम से कम लोग लें या लोग कम से कम लोन लें, तो वो क्या करेगा, इस डिफरेंस को और ज़्यादा बढ़ा देगा. अब उसे क्या कर दिया कि 80,000 के अगर आपको लोन चाहिए तो आपको 1,20,000 का सिक्योरिटी मॉर्टगेज करनी पड़ेगी. इसका मतलब 1,20,000 माइनस 80,000, अब ये जो है ये हो गया 40,000. इससे क्या होगा, लोन महंगे हो गए हैं, लोग लोन कम लेंगे, मीन्स सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में कम हो जाएगी. सो कीप इन योर माइंड, व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी देयर विल इंक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन. क्लियर बेटा? एंड अपोजिट विल हैपन व्हेन देयर इज डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज अबाउट द सेकेंड वन. दिस इज द राशनिंग ऑफ क्रेडिट. ये बहुत ध्यान से समझिए. एक्चुअल में जो राशनिंग ऑफ क्रेडिट है यही आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होता है. देखो बेटा,
राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? इन दिस मेथड द सेंट्रल बैंक कैन गिव डायरेक्शंस टू द कमर्शियल बैंक्स not to give credit for certain purposes or to give more credit for particular purposes or to the priority sectors. यहाँ पर कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि किस एक्टिविटी के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा और किस एक्टिविटी के लिए लोन प्रोवाइड नहीं करना. इन फैक्ट दिस इज द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज इंट्रोड्यूस्ड when there is inflation in the economy. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ. देखो बेटे, स्पेक्यूलेटिव मोटिव जैसे गैम्बलिंग के लिए या शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा. बाकी प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए आपको लोन मिल जाएगा. ऐसा एडॉप्ट किया जाता है when there is inflation in the economy. एक एग्जाम्पल लो. अगर एक बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा खर्चीला है, पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी और बहुत पैसे खर्चता है. जब पैसे उसको मिल रहे थे, खर्चा दिया जा रहा था उसको, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आया, हाफ ईयरली रिज़ल्ट आया, पता लगा कि बच्चा कोई काम वाम नहीं कर रहा. अब उस पर रिस्ट्रिक्शन लगनी शुरू हो गई है. कैसे रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं? तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसे मिलेंगे, ट्यूशन्स के लिए पैसे मिलेंगे, मोबाइल के अब आपसे ले लिया जाएगा, आपको रिचार्ज नहीं कराने दिया जाएगा, जो पेट्रोल का खर्चा है वो अब आपका काटा जाएगा, आपको फालतू खर्चने के लिए पॉकेट मनी नहीं मिलेगी. जो ये 4 मरला में जाकर या कभी आप आग के पास जाकर आप सूप पीते हो या बेफालतू के पिज़्ज़ा वगैरह खाते हो, इस सब के लिए अब आपको पैसे नहीं मिलेंगे. मीन्स रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि किसके लिए पैसे मिलेंगे और किसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे. ये रिस्ट्रिक्शन कब आई? जब बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ गया था. अब एक बच्चा है, वो बिल्कुल नहीं खर्चता, बहुत ही सीधा बच्चा है. जो बहुत ज़्यादा कंजूस लोग होते हैं ना, वो इकॉनमी के लिए अच्छे नहीं माने जाते. अब वो बच्चा है, बिल्कुल नहीं खर्चता, बिल्कुल भी नहीं खर्चता, तो उसको क्या कहा जा रहा है? प्लीज़ मार्केट जाओ, थोड़ा घूम आओ, थोड़ा पैसे खर्च आओ, जाकर कुछ खा लो, दोस्तों को पार्टी दे दो. मतलब हम क्या चाहते हैं कि वो खर्चे. जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, मीन्स फ्लो ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है, सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है और सामान कम है. ऐसी सिचुएशन में लोगों को क्या किया जाता है कि कम से कम खर्चे. मीन्स किस पर्पज़ के लिए लोन आपको मिलेगा और किस पर्पज़ के लिए लोन आपको नहीं मिलेगा. क्लियर? प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए मिलेगा, नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए या स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा. क्लियर? और अगर है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब राशनिंग ऑफ क्रेडिट विल बी टोटली रिमूव्ड. अगर नहीं तो शुरू ही नहीं की जाएगी, अगर कोई राशनिंग चल रहा है तो उसको भी रिमूव कर दिया जाएगा. सो राशनिंग ऑफ क्रेडिट विल बी इंट्रोड्यूस व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. अब इसको ध्यान से देखो. इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड का मतलब इन्फ्लेशन, लीडिंग टू इन्फ्लेशन, द सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूसेस राशनिंग ऑफ क्रेडिट in order to prevent excessive flow of credit, particularly for speculative activities. It helps to wipe off the excess demand. In a situation of deficient demand leading to deflation, the central bank withdraws rationing of credit and make efforts to encourage credit कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चें. Clear बेटा? Move to the next topic. This is about the moral suasion, a persuasion technique followed by the central bank to pressurize the commercial banks to abide by the monetary policy is termed as moral suasion. This involves meetings, seminars, speeches and discussions which explains the present economic scenario and thereby persuading the commercial banks to adapt the changes needed. अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए. There is no direct link between the central bank and the general people or general public, but the policy is to be the policy is made for the जनरल पब्लिक. उन्हीं के लिए बनी है, उन्हीं को ही फॉलो करनी है, लेकिन फॉलो करानी किसको है? द ओनली लिंक बिटवीन द सेंट्रल बैंक
and general public is commercial bank. That's why commercial banks are motivated to follow the directions and instructions given by the central banks and the according to the circumstances. In case of inflation, central bank instructs commercial banks to reduce the flow of credit in the economy, and during deflation, central bank instructs the commercial banks to increase the flow of credit in the economy. That's why commercial banks are motivated by the central bank to follow all the direction. So moral suasion is a combination of both persuasion and pressure. अगर कमर्शियल बैंक उसकी सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ को नहीं मानता या उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, देन द डायरेक्ट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक्स एंड द एक्शन मे बी एज स्ट्रिक्ट एज द डी-एफिलेशन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. उसको डी-एफिलेट किया जा सकता है अगर कमर्शियल बैंक उसकी बात को नहीं मानता. सबसे पहले उसको क्या करता है, परसुएट करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, मोटिवेट करता है, और अगर वो उसकी मोटिवेशन को नहीं मानता फिर वो क्या कर सकता है, वो उसको प्रेशराइज कर सकता है, वो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है. गॉट द कॉन्सेप्ट? फिर से देखिए, क्वालिटेटिव में आपको 3 पॉइंट करने हैं. वन इज़ द मार्जिन रिक्वायरमेंट of loans, second is the rationing of credit, and third is the moral suasion. So this is all about the monetary policy. Dear students, you are to learn all these 9 instruments, 6 from the quantitative and 3 from the qualitative. These are very very important. 9 के 9 आपको प्रिपेयर करने हैं, अभी भी करने हैं, और फिर हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे, वहाँ भी आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. गॉट द कॉन्सेप्ट? सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, डू योर वर्क प्रॉपरली. गुड बाय डियर स्टूडेंट्स. गुड बाय डियर स्टूडेंट्स. हैव अ वंडरफुल डे.